Hello and welcome you all to Azito Academy. Students, the moment we open our eyes every morning and look at the surroundings, we are simply amazed by his creation, varying from very little to extremely large in size. They differ in shape, size, appearance, and also texture. स्टूडेंट्स, मॉर्निंग में या हम लोग के चारों चारों ओर जब भी हम लोग अपना आँख खोलते हैं तो सही में हम लोग को कभी बहुत ज़्यादा आश्चर्य लगता है या सोचने पे हम लोग मजबूर हो जाते हैं कि चारों तरफ बहुत सारे चीज़ वो क्या है। वो डिफरेंट शेप के हैं, साइज के हैं, टेक्सचर, कलर, सब कुछ अलग अलग है हम लोग के चारों ओर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, यूनिवर्स कहते हैं। वो सारे चीज को अगर हम लोग बोलेंगे तो एक वर्ड में क्या बोल सकते हैं, मैटर बोल सकते हैं। सो नाउ स्टूडेंट्स, today's topic is chapter name is matter in our surroundings, and today's topic is matter and properties of matter. Now the first of all, what is the matter? Matter क्या है student? anything or everything which occupies space and has mass is called matter. मीन्स क्या है स्टूडेंट्स मैटर? कोई भी चीज, चाहे वो चींटी जैसा छोटा भी हो या हाथी जैसा बड़ा भी हो, एक स्मॉल या लार्ज क्रिएशन कोई भी चीज हो, और वो स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा है, जगह भी ले रहा है, एंड ऑल्सो उसके वेट भी है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे। सपोज ये पेन स्टूडेंट, ये पेन में इस हाथ में जगह भी ले रहा है, ओके, और इसका एक वेट भी है। दैट मीन्स यूनिवर्स में, मीन्स अर्थ में, हर जगह में कोई भी चीज जो जगह भी लेता हो, एक स्पेस ऑक्यूपाई भी करता हो, और जिसका खुद का एक मास, एक वेट हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, एनीथिंग और एवरीथिंग which occupies space and has mass is called matter. Examples: air, the air we breathe in, the food we eat, the clothes we wear, the houses where we live, the water which is most essential thing for every living being, clouds, stars and different planets. सिर्फ इतना ही नहीं है स्टूडेंट्स, कोई भी चीज़, चाहे हम लोग स्वीट्स का बात अगर लेंगे, चाहे अगर हम लोग कोई वेजिटेबल्स लेंगे, ब्लैक बोर्ड, सेल फोन, पेन, कॉपी, एवरीथिंग, क्योंकि ये सारा मैटर क्यों है, क्योंकि ये सारे के सारे चीज स्पेस भी लेता है और उसका एक मास भी होता है। सो दैट्स व्हाई दिस ऑल आर, एवरीथिंग आर मैटर, ओके। The modern scientists have classified matter in two ways. This one is physical properties and chemical properties. On the basis of appearance, means looking, and the basis of composition. The form is called physical properties or physical classification, and the composition, it's called the chemical composition. Properties of matter. Matter is made up of particles. The particles constituting a matter are very small in size.
The particles have empty or vacant space in them known as interparticulate space. Particles of matter are continuously moving. Particles of matter attract to each other. Movement of particles increase with the increasing temperature. These all are the properties of matter. So now I will explain one by one by experiment. The first one is matter is made up of particles. Now students, aim to study the nature of matter. Materials required: sugar, beaker, glass rod, water and marker. There is a figure. There is 3 beakers. The first beaker, only water present. Second beaker, add sugar, and the third beaker, it will form sugar solution. Now the procedure. Take a 100 ml beaker. This one is the 100 ml beaker. These 3 beakers at 100 ml. Take a 100 ml Take a 100 ml of beaker. First procedure. Second is fill the beaker half with water. Suppose this is the 50 ml, okay, 50 ml. Fill the beaker half with water and mark its label. Third one, add 5 gram of sugar to it. मीन्स स्टूडेंट हम लोग एक बीकर ले लिए, उसमें पानी भर लिए. पानी भरने के बाद हम क्या कर रहे हैं, उसमें मार्कर से उसको मार्क कर लिए कि हम कितने पानी लिए. ठीक है, सपोज ये 50 ml हम पानी लिए. ओके, 50 ml पानी हमने ले लिया. तो इसको हम क्या किए, मार्कर से मार्क कर ले. स्टूडेंट्स, इसको आप लोग अपना इस डेमोस्ट्रेशन को आप घर में भी कर सकते हैं. एक कांच के ग्लास लेके उसमें भी आप पानी लेके उसको मार्कर से मार्किंग कर लीजिए कितना पानी आप ले रहे हैं. आफ्टर दैट आप जब शुगर ऐड कर रहे हो, 5 ग्राम ऑफ शुगर, 10 ग्राम, जो भी शुगर आप ऐड कर रहे हो, फिर उसे अच्छा से स्टीयर कर लेना है. उस मिक्सचर को अच्छा से स्टीयर कर लेंगे. स्टीयर द मिक्सचर. with the help of a glass rod. लेकिन घर में हम लोग क्या करेंगे, स्पून का यूज कर लेंगे. उसके बाद हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे, व्हाट वी विल ऑब्जर्व द चेंज in the water label. अब हम लोग क्या ऑब्जर्व किए, पहले तो पानी ले लिए बीकर में 50 ml, उसके बाद शुगर को ऐड किए, फिर उसको स्टीयरिंग किए, बहुत अच्छे से उसको मिक्सअप किए उस मिक्सचर को, फिर उसको हम लोग शुगर सॉल्यूशन में कन्वर्ट किए, मीन शुगर सॉल्यूशन बन गया. अब तक शुगर वो बनने के बाद, शुगर सॉल्यूशन बनने के बाद फिर से हम लोग क्या ऑब्जर्व किए, उस लेवल को चेक किए. कौन सा लेवल, जो पहले हमने मार्क कर
किए हुए थे कि ये 50 ml ऑफ वाटर. ओके, तो चेंज इन द वाटर लेवल taste of water and change taste of water and change in the appearance of water. ये तो हो गया प्रोसीजर. अब ऑब्जर्वेशन. अब ऑब्जर्वेशन क्या है स्टूडेंट? सुगर डिजॉल्व इन वाटर, the level of water remains the same, which shows that the particle of sugar have occupied space between the particles of water. और nature क्या हुआ? Water is sweet in taste. So this is the observation. Sugar dissolve in water fast. सेकेंड ऑब्जर्वेशन कि लेवल में कोई चेंजेस नहीं आया. ये एक्टिविटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स. अक्सर व मोस्टली ये एग्जाम में पूछा जाता है. ये एक्टिविटी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. सो प्लीज डोंट स्किप द वीडियो. This is very important experiment or activity in this chapter. Remains the same, which shows that the particle of sugar have occupies the space spaces between the particles of water. Number third, water is sweet in taste. Okay. Conclusion. In the above experiment, very small sugar particles occupy the space between the water particles. Therefore, the level of water remains unchanged. So, this is the conclusion, student. Very small sugar particle occupy the spaces between the water particles. Therefore, the level of water remains unchanged. Okay, student.
Now the next experiment or activity, how small are the particles of matter? Aim to show how small the particles of matter are. Materials required: 2-3 crystals of potassium permanganate KMnO4, 5 test tubes, 250 ml beaker and glass rod. स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हमने क्या किया, बीकर में 100 ml ऑफ वाटर और पोटासियम परमंगनेट को हम लोग क्या किए, उसको मिक्सअप कर लिए. ये हम लोग घर में भी डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं. क्या लेके, इंडिगो लेके स्टूडेंट्स. जैसे कि वाटर में जो वाइट क्लोथ्स होता है जिससे हम लोग नील डालते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं, उसे हम लोग इंडिगो कहते हैं, उसका एक मिक्सअप बना लेंगे. उससे भी हम लोग इस एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं. पोटासियम परमंगनेट जब हम लोग वाटर के साथ सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसका कलर पर्पल हो जाता है स्टूडेंट. ओके, तो पहले हम लोग प्रोसीजर में क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल मार्क दिस द 5 test tube A B C D E. तो mark the test tube as A B C D and E. पहले हम लोग क्या किए, टेस्ट ट्यूब को मार्क कर लिए, पांचों टेस्ट ट्यूब को. ओके, नंबर सेकेंड, टेक 100 ml water in beaker and add 2-3 crystals of potassium permanganate. मैंने पहले ही कहा स्टूडेंट कि हम लोग पहले क्या करेंगे, पोटासियम 2-3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटासियम परमंगनेट का एक सॉल्यूशन बना लेंगे वाटर के साथ मिक्सअप करके 100 ml ऑफ वाटर के साथ. आफ्टर दैट थर्ड पॉइंट, स्टीयर इट वेरी वेल. अच्छे तरह से क्या करेंगे, मिक्सअप कर लेंगे. विद द हेल्प ऑफ अ ग्लास रॉड अच्छे से स्टीयरिंग कर लेंगे. ओके, फोर्थ पॉइंट स्टूडेंट, ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सॉल्यूशन. क्या ऑब्जर्व करेंगे हम लोग, इसका कलर को ऑब्जर्व करेंगे. पॉइंट, वही जो बीकर में हम लोग सॉल्यूशन बनाते हैं पोटासियम परमंगनेट वाटर का, उससे हम लोग क्या करेंगे, 10 ml ऑफ फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में उसको हम लोग निकाल लेंगे. टेक 10 ml ऑफ द above solution in test tube A. टेस्ट ट्यूब ए में क्या किए, हम लोग निकाल लिए. एंड ऐड, फिर उसे क्या किए, 90 ml ऑफ वाटर के साथ फिर से मिक्सअप किए. और यही चीज हम लोग 5 टाइम्स करेंगे स्टूडेंट. तो क्या ऑब्जर्व करेंगे, निकाल लेने के बाद और फिर से उस 10 ml को 90 ml ऑफ वाटर में मिक्सअप करने के बाद हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व द चेंज इन कलर. जो बीकर में कलर था स्टूडेंट, जब वहां से 10 ml ऑफ पोटेशियम परमंगनेट सॉल्यूशन को लेके फिर अलग से
90 ml ऑफ वाटर में जब हम ऐड करेंगे तो उसका कलर में क्या होगा, बहुत हद तक वो चेंज हो जाएगा, फीका पड़ जाएगा, लाइट हो जाएगा. ओके, नाउ द 6th point, take 10 ml अब उस टेस्ट ट्यूब वे से फिर से हम 10 ml निकाल के फिर 90 ml ऑफ वाटर में मिक्सअप किए, फिर उसका कलर को हम लोग ऑब्जर्व किए. ऐसा हम लोग कितने बार करेंगे, 5 टाइम्स करेंगे. ए से लेके बी में, फिर बी से लेके सी में, इस तरह से हम लोग ई तक जाएंगे, ई टेस्ट ट्यूब तक जाएंगे और वहां पर जाके हम लोग क्या करेंगे, कलर को ऑब्जर्व करेंगे स्टूडेंट. Test tube A and put it in test tube B. And क्योंकि ये हमको बार बार करना है, मिक्सअप बार बार करना है ताकि हम लोग इसका कलर को देख सके कि इस कलर में क्या चेंजेस हो रहा है. फिर से हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे, कलर को, द चेंज इन कलर. Now the 7th point, repeat the process with the remaining 3 test tubes C, D and E. मीन्स इन तीनों में भी लास्ट में सेम चीज हम लोग रिपीट करेंगे बार बार. And the last procedure, observe the change in color in all the test tubes. स्टूडेंट्स, ये एक्सपेरिमेंट भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. इस चैप्टर में ये एक्सपेरिमेंट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो इसीलिए स्टूडेंट इस वीडियो को प्लीज़ स्किप नहीं कीजिएगा, इसको completely you all watch it. Now the observation student, the color of the solution, the color of solution in the beaker is dark purple. अब स्टूडेंट यहाँ पर पर्पल कलर नहीं है तो आप लोग कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, यहाँ पर ब्लू है क्योंकि मेरे पास ब्लू इंक ही है. ओके, तो थोड़ा सा ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए हमने ये डायग्राम ड्रॉ किया है. ओके, लेकिन एक्चुअल पोटेशियम परमंगनेट सॉल्यूशन का जो कलर होता है वो पर्पल कलर का होता है. ओके स्टूडेंट, सो द कलर ऑफ सॉल्यूशन इन द बीकर इज डार्क पर्पल which becomes lighter when it is dilute. When it is diluted in test tube, A, still lighter
in test tube B and becomes still lighter, मीन्स ये लाइटर होते ही जाएगा एक के बाद एक, जितना भी मतलब हल्का। पहले तो बीकर में पोटेशियम परमंगनेट सॉल्यूशन से फर्स्ट बीकर ए में आया, उसमें वो लाइट हुआ, फिर उससे हम लोग 10 ml लेके फिर बी में गए, तो वो उससे और थोड़ा कम मतलब कंपैरिजन टू ए वो और थोड़ा लाइट हो गया। उसी तरह से जब हम लास्ट ई तक जाएंगे तो वो एकदम क्या हो जाएगा, एकदम लाइटर हो जाएगा। Still lighter in the subsequent test tube C, D and E। अब कंक्लूजन क्या निकलता है स्टूडेंट? क्या कंक्लूजन निकल रहा है इसका? तो कंक्लूजन क्या निकला? द वाटर इन द लास्ट टेस्ट ट्यूब, मीन्स जब हम लोग लास्ट टेस्ट ट्यूब तक भी गए तो उसमें भी हम लोग का ये पोटेशियम परमंगनेट का कलर दिख रहा था, लाइट से भी लाइट, लेकिन उसमें भी कलर था। तो इससे हम लोग को क्या पता चलता है, या क्या इस डेमोन्स्ट्रेशन से हम लोग को क्या पता चल रहा है? The last test tube has particles of potassium permanganate even if we can't see them with our naked eye, but उसमें कलर है। So the water in the last test tube is still colored despite being diluted several times this shows that even the last test tube has particles of potassium permanganate even if we cannot see them with our naked eye। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट इस एक्सपेरिमेंट से तो आप लोग को पता चल गया कि पार्टिकल्स मैटर ऑफ पार्टिकल्स वो कितने साइज में कितना छोटा होता है, कि उसका मिक्सचर हम लोग एक के बाद एक जब चेंज करते गए, वो लास्ट टेस्ट ट्यूब तक उसका कलर एकदम लाइटर से लाइटेस्ट में चला गया, लेकिन उसमें कलर था, तो वो कम्प्लीटली क्या हुआ, डिसॉल्व हो गया था, डाइल्यूट हो गया था वाटर के साथ। तो thank you so much for watching this video. Please like, share and subscribe the channel to get the next update of video.